Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे वर्ड क्लियर किए थे. फर्स्ट इज सरकमफ्रेंस. अगेन आई रिपीट इट, रिवाइज इट, because we are studying right now online, not offline. अगर ये ऑफलाइन होता तो शायद सीसीटी में भी इसको हम कवर कर लेते, लेकिन राइट नाउ वी आर स्टडी ऑन ऑनलाइन, सो बार बार इसे हमें रिवाइज करना होता है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर को अगर मिस कर दिया है या अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो आगे जाके उसको दिक्कत हो सकती है. उसके लिए भी हम रिवाइज करते हैं बार बार. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट सरकमफ्रेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकमफ्रेंस? इट्स अ लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ द सर्कल. अगेन आई रिपीट, इट्स अ लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ द सर्कल एंड द फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस इज 2 pi r. Formula of the circumference is 2 pi r. Second word, that is area. Area means what? Space occupied by circle in a space. Space occupied by a circle in a space, that is called area. Here first space and the second space means it's a board, plane. Either we can say that also plane. Space occupied by a circle in a plane. Plane ज़्यादा easy word रहेगा. Space occupied by a circle in a plane is called area of the circle, and the area of the circle is what? Pi r square. ये जो दो वर्ड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेजर सेक्टर है, मेजर आर्क है, मेजर सेगमेंट है, उस सभी में इसकी ज़रूरत होगी. फिर चाहे वो सरकमफ्रेंस हो या एरिया हो. और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो भी हमने देखा है. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड सरकमफ्रेंस. Circumference is given, then we have to find r. If r is given, then we have to find area. If area is given, then we have to find r. Circumference is given, then we have to find area. If area is given, then we have to find circumference. Then also we study two different topics, like if it's a question related to fencing around the circle, then it's a topic of circumference of the circle. And if it's a question of plowing a farm, then it's a question related to area. उसके भी दो questions होंगे friends. Then we study about wheel of truck, either wheel of cycle. उसमें भी हमने देखा है two statements. Distance covered by a wheel in a one revolution is equals to circumference of the wheel, or circumference of the wheel means what? Distance covered by a wheel in a one revolution. ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझने हैं फ्रेंड्स. उसके बाद हमने कौन सा वर्ड क्लियर किया? दैट इज आर्क. एज वी नो, होल सर्कल, either boundary of the circle, it's a union of infinite points. Suppose we take 2 points, 2 distinct points on a circle, then circumference divide in a 2 parts. Again I repeat, circumference divide in a 2 parts. Out of them which have less length, that is minor arc, and which have more length, that is major arc. Again I repeat, circumference divided in 2 parts. Both part are arc, दोनों arc ही है, but out of them one is minor arc and one is
major arc, which have less length, that is minor arc, and which have more length, that have major arc. Now circumference have length, then minor arc and major arc have also length because they are the part of the circumference. So now what is the formula of minor arc? It's a pi r theta by 180. Okay, pi means 22/7, either 3.14. R means radius. Theta means angle subtended by minor arc at the center point. समझ में आ रहा है? जो एंगल माइनर आर्क ने सेंटर के पास बनाया है वही थीटा है. ओके, नाउ मेजर आर्क, जो मेजर आर्क है उसकी फॉर्मूला क्या होगी? सो मेजर के लिए मैंने एक छोटी सी फॉर्मूला आपको बताई थी. मेजर इक्वल्स टू सर्कल माइनस माइनर. अब अगर आप आर्क की फॉर्मूला बना रहे हो तो दोनों साइड आर्क लगा दीजिए. सो मेजर आर्क इक्वल्स टू, सर्कल में क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस माइनर आर्क. तो इसका मतलब ये हुआ टू फाइंड द मेजर आर्क वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स. फर्स्ट सरकमफ्रेंस, सेकंड माइनर आर्क. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको माइनर आर्क तो फाइंड करनी ही है फ्रेंड्स. ओके, देन अनदर वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर्स में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें ये फाइंड नहीं करना हो. इट्स अ सेक्टर. व्हाट इज सेक्टर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर? एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड रिलेटेड टू इट्स आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. इट मीन्स वी हैव टू सेक्टर्स, on a lower side and on a upper side. Again I repeat, ये सभी चीज़ हम आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं विद द फिगर. एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस, आपको टू रेडियस दिखाई देनी चाहिए. एंड आर्क, आर्क दोनों साइड होगी, नीचे की साइड भी होगी और ऊपर के साइड भी होगी. सो एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्टर. इट मीन्स देयर आर टू सेक्टर्स. ओके, अब उसी डेफिनेशन में जो सेक्टर की डेफिनेशन है, सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड रिलेटेड टू इट्स आर्क. अब उसी डेफिनेशन में अगर हम आर्क की जगह माइनर आर्क वर्ड यूज करेंगे देन इट बिकम्स माइनर सेक्टर. और अगर हम मेजर आर्क वर्ड यूज करेंगे देन इट बिकम्स मेजर सेक्टर. सो इट्स वेरी सिंपल. सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क? area enclosed by two radius and one minor arc and related to its minor arc, that is called minor sector. Okay, minor sector के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हो, पिज़्ज़ा. आपने पिज़्ज़ा का कोई एक पार्ट लिया है, जो पूरा पिज़्ज़ा होता है इट्स अ सर्कल, लेकिन उसमें से अगर आप एक पार्ट ले रहे हो देन दैट इज माइनर सेक्टर. समझ में आ रहा है? वो जो पार्ट है दैट इज माइनर सेक्टर. तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, माइनर सेक्टर इट्स अ वन पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन टू माइनर सेक्टर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. और उसके एक और फॉर्मूला है दैट इज 1/2 RL. अब वो फॉर्मूला कब लेनी है? व्हेन वी हैव लेंथ ऑफ माइनर आर्क. हियर L मीन्स व्हाट? लेंथ ऑफ माइनर आर्क. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर. अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और 1/2 RL. अब जो सर्कल है उसमें जो माइनर सेक्टर है उसके अलावा जितना पार्ट है, जो बाकी का पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल. अगेन मेजर के लिए छोटी वाली फॉर्मूला, मेजर इक्वल्स टू सर्कल माइनस माइनर. अब किसकी फॉर्मूला बनानी है? सेक्टर की. तो दोनों साइड सेक्टर वर्ड लगा दीजिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला बिकम्स? मेजर सेक्टर इक्वल्स टू, अब सर्कल में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल. So area of the circle minus minor sector.
सो क्या हो गई फॉर्मूला, मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। तो उसका भी मतलब क्या हुआ, अगर आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, फर्स्ट एरिया ऑफ द सर्कल and we know the formula of area of the circle, that is pi r square, and second we have to find area of minor sector, and also we know the formula of minor sector, that is pi r square theta by 360. So first of all these two things individually we will find and then we will subtract it, nothing to worry it. So these are the words which we cleared in a last lecture, सर्कमफ्रेंस, एरिया, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये सभी क्लियर होने चाहिए। समझ में आ रहा है। काफ़ी बार मैं बच्चों को हंसाने के लिए कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, ये सभी वर्ड क्लियर होने चाहिए, क्यों, वरना ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दिया है माइनर आर्क, फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर में दिया है माइनर आर्क और बच्चे उसको समझ रहे हैं माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट। सो इट्स अ डिफिकल्ट फ्रेंड्स, सो इट्स अ मिस्टेक। तो ये नहीं करना है। काफ़ी बार मैं बच्चों को कहता हूँ जोक्स में कि એવું ન બને, ગુજરાતીમાં કહું છું જોક્સ, કે એવું ન થાય। ઘણીવાર કેવું બને કે જોવા ગયા હોય છોકરી અને જોઈને આવી એના મમ્મીને, સમજાય કે છોકરો જે છે એ જોવા ગયો હોય મમ્મીને, સોરી છોકરીને, મમ્મીને નહીં, પણ જોઈને આવે એના મમ્મીને, એટલે કે એના મમ્મી માની લો કે ચા લઈને આવ્યા હોય તો છોકરાના પપ્પાને એમ કે પપ્પા પપ્પા ચાલશે, પછી એના પપ્પા એમ કે એટલે આ તો એના મમ્મી છે, છોકરી તો હજી આવવાની બાકી છે। એટલે એવું ન થાય કે આપ્યું હોય માઇનર સેક્ટર અને તમે એને જોઈને એમ કહો કે આ તો માઇનર સેગમેન્ટ છે અને તમે પછી ફાઇન્ડ કરી નાખો માઇનર સેગમેન્ટ, એવું થવું જોઈએ નહીં। ક્લિયર? ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये टॉपिक आपको देखना है। सो नेक्स्ट वर्ड इज सेगमेंट। लास्ट वर्ड ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इतने कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे फ्रेंड्स। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द वर्ड? सेगमेंट। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेगमेंट, ओनली वर्ड सेगमेंट। ओके, जैसे हमने सेक्टर क्लियर किया था वैसे ही इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। Suppose we have a circle like this, it's a center point O. Suppose it's a two distinct point A and B, we know that. Now if I join A and B, then it becomes what? It's very simple, it's a chord, it's a chord AB. Okay, so it's a chord AB and it's a arc APB. I am not talking that minor arc, I am not using that word. It's a arc APB and that is what? Arc AQB. So now what is the definition of segment? It's very simple friends. Area enclosed by chord and related to its arc. Again I repeat, area enclosed by chord and its arc. So that part is here, that is the part, that part is called segment. Same here, that is chord and that is also arc. So area enclosed by chord and arc, that is segment. So these both part are segment. These both part are segment.
this red part is a segment and this green part is also segment. That is clear? Okay, again I repeat, what is the definition? You can note down it. Area enclosed by chord and its arc. Ready? That is called segment. Now there are two types of segment. First is a minor segment, which is also denoted by AB union of APB. Okay. So what is the definition of minor segment? अब माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन उसके लिए आपको सेगमेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी अभी? एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स आर्क. अब उसी डेफिनेशन में अगर हम आर्क की जगह माइनर आर्क वर्ड यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट्स अ माइनर सेगमेंट. समझ में आ रहा है? तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट्स अ माइनर सेगमेंट. सो यहाँ वो पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर सेगमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर सेगमेंट? इट्स अ एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड. इट्स अ कॉर्ड AB एंड माइनर आर्क. माइनर आर्क इज व्हाट? APB. सो ये जो रेड वाला पार्ट है, इट्स बिकम्स माइनर सेगमेंट. ये जो है ये क्या हो गया? इट्स अ माइनर सेगमेंट. Why? Again I repeat, why it's a minor segment? What is the definition of minor segment? Area enclosed by what? Chord and minor arc. It's a chord AB and it's a minor arc APB. So ये दोनों ने जितना एरिया कवर किया है, that is called minor segment. अब हमें इसकी फॉर्मूला देखनी है कि इसकी फॉर्मूला क्या है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू. अब इसकी फॉर्मूला काफी इजी है फ्रेंड्स. अगेन ये फिगर मैंने सिर्फ सेगमेंट वर्ड समझाने के लिए ड्रॉ की थी. नाउ फॉर द माइनर सेगमेंट, again it's a circle, center point O to distinct point A and B. AB is a chord. Suppose we join A and O and O and B. So it's a chord AB and it's a minor arc APB. So area enclosed by these two is called minor segment. We know that. अब हमें इसकी फॉर्मूला बनानी है फ्रेंड्स. सो इट्स वेरी सिंपल. हाउ कैन वी मेक इट? अब इसके लिए ये पूरी फिगर देखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इतनी फिगर ही देखो, ये वाली. इसमें से हम अलग से ये फिगर बना सकते हैं फ्रेंड्स. सेम ही है. मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ इतना ही पार्ट लिया है. अब ये क्या है? It's a minor segment. In short, आप ऐसा भी याद रख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शॉर्ट में समझाया था, माइनर सेक्टर इज अ पिज्जा. पिज्जा तो आप बार बार खाते ही होते हो. सो जैसे ही माइनर सेक्टर वर्ड आए तो आपको वो पिज्जा वाली डिजाइन दिखाई देनी चाहिए, उसकी फिगर दिखाई देनी चाहिए. दैट इज माइनर सेक्टर. तो इसमें क्या होगा? तो इसको याद रखने के लिए एक વર્ડ દે रहा हूँ. ગુજરાતીમાં તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે એને સાદી ભાષામાં આપણે ઘરે ઓલું, કદાચ તમે લોકોએ તો સાંભળ્યું નહીં હોય, ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટે, ઓલું છાલ્યું આવે દૂધ પીવાનું. રેડી? વાટકો જેને આપણે કહીએ છીએ, તો એ જે છે એને તમે યાદ રાખો. આવું જે આ ડિઝાઇન છે એ કોના જેવી છે? છાલ્યું. રેડી? दूध पीवा माटे होय, वाळो करवा माटे दूध जेमां लेवामां आवे ए, अथवा वाटको. तो वाटका जेवी डिजाइन कहीए एटले ए माइनर सेगमेंट. ख्याल आवी गयो? ओके. हवे आपणे आ फाइंड करवुं छे.
हाउ कैन वी फाइंड इट? अगेन सेम जो हमें पूरे चैप्टर्स में करना है। आपके एक हाथ में क्या है? पेज, और एक हाथ में क्या है? सीजर। ऐसा सोचिए कि ऐसी ही डिजाइन वाला एक पेज आपके हाथ में है। ऐसे डिजाइन मीन्स कैसे डिजाइन? यहां व्हाइट पार्ट है और यहां शेडेड पार्ट है। अगेन आई रिपीट, हियर इज व्हाइट पार्ट एंड हियर इज शेडेड पार्ट, और एक हाथ में आपके सीजर है। ओके, हमें क्या चाहिए? वी वांट माइनर सेगमेंट। सो ये जो फिगर है इसमें माइनर सेगमेंट कौन है? अभी तो पता ही है, इट्स अ व्हाइट पार्ट और शेडेड पार्ट। आप जानते हो इट्स अ शेडेड पार्ट। सो हमें ये शेडेड पार्ट चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? तो आपको ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। काफी बच्चे कह पाएंगे, सभी बच्चे कह पाएंगे, वी विल कट डाउन द व्हाइट पार्ट by the scissor. We will cut down this white part from the page. अगर हम पूरे पेज में से ये व्हाइट पार्ट कट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनर सेगमेंट, ये शेडेड पार्ट मिल जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला। वही तो फॉर्मूला है। आपने जो किया वही फॉर्मूला है। आपने क्या किया? टू फाइंड द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट के लिए आपने क्या किया? फ्रॉम द पेज यू कट डाउन द व्हाइट पार्ट। ओके, अब उसके एक्चुअल नेम क्या है? शेडेड पार्ट मीन्स व्हाट? जिसको हम शेडेड पार्ट कह रहे हैं वो क्या है? इट्स अ माइनर सेगमेंट। तो अब हम शेडेड पार्ट की जगह क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और पेज, तो जो पेज है उसका शेप क्या है? अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इट्स OAPB। उसका शेप क्या है? माइनर सेक्टर। पिज्जा, ये पूरा पिज्जा वाला फिगर है। सो इट्स अ माइनर सेक्टर। और ये जो व्हाइट पार्ट है उसका शेप क्या है? इट्स अ ट्राइंगल। अगेन आई रिपीट, फॉर द शेडेड पार्ट व्हाट यू डू? यू कट डाउन व्हाइट पार्ट फ्रॉम द पेज। From the page you cut down white part. Now shaded part is minor segment. In the figure shaded part is minor segment. Page means page is a shape of minor sector and white part means it's a triangle. अब यही वर्ड यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? अब इन तीनों में एरिया वर्ड हम लगा देंगे। सो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। विच इज द माइनर सेक्टर? इट्स अ OAPB एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। समझ में आ रहा है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें माइनर सेगमेंट फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो हमें दो चीज फाइंड करनी है। फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और वो तो हम कैसे फाइंड करना है हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। वी नो द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर, इट्स अ पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसकी हम अभी बात करेंगे फ्रेंड्स। अब आपने देखा हो तो एक्चुअली पूरे चैप्टर्स में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अगर आपने देखा हो तो पता हो तो फर्स्ट इज फर्स्ट फॉर्मूला कौन सी है? इट्स अ पाई r स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मूला इज पाई r थीटा बाई 180 और सेकंड इज पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। आई थिंक पूरे चैप्टर्स में ये दो फॉर्मूला ही है। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ माइनर आर्क और इट्स अ फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे समझ में आ रहा है? ये माइनर आर्क की फॉर्मूला है और ये माइनर सेक्टर की फॉर्मूला है।
काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो काफ़ी सारे फॉर्मूला देखे, तो सिर्फ ये 2 ही क्यों, लेकिन ज़्यादातर फॉर्मूला में यही 2 आएंगे फ्रेंड्स। कैसे? सपोज ये किसकी फॉर्मूला है? माइनर आर्क। ओके, सो मेजर आर्क की फॉर्मूला क्या है? मेजर की, उसकी हमने फॉर्मूला बताई है, सर्कल माइनस माइनर। इसका मतलब क्या है? आपको जब भी मेजर की फॉर्मूला बनानी है तो क्या करना है? सर्कल माइनस माइनर। अब मान लीजिए कि ये माइनर आर्क की फॉर्मूला है और आपको मेजर आर्क की फॉर्मूला बनानी है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड आर्क वर्ड लगा दीजिए, तो इट बिकम्स मेजर आर्क इक्वल्स टू सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस माइनर आर्क। तो उसका मतलब क्या होगा? टू फाइंड द मेजर आर्क आपको माइनर आर्क ही फाइंड करनी है, तो अगेन यही फॉर्मूला आई। अब ये किसकी फॉर्मूला है? माइनर सेक्टर। अब आपको मेजर सेक्टर की फॉर्मूला बनानी है, तो क्या करोगे? तो दोनों साइड सेक्टर वर्ड लगा दीजिए। मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। तो उसका मतलब भी क्या हुआ? उसके लिए भी आपको माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। नाउ हियर माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट इज दिस, इसकी फॉर्मूला क्या है? माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके लिए भी आपको माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। सो आई थिंक पूरे चैप्टर्स में दिस 2 फॉर्मूला ही है, पाई आर थीटा बाय 180 और पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और 80% क्वेश्चन में तो यही आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब माइनर सेगमेंट की जो फॉर्मूला अभी हमने बनाई, ये वाली माइनर सेगमेंट की, उसकी फॉर्मूला क्या बनाई हमने? माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ये फॉर्मूला हमने बनाई। तो अब उसमें हमने देखा कि टू फाइंड द माइनर सेगमेंट वी नीड 2 वैल्यूज। विच आर द 2 वैल्यूज? फर्स्ट इज माइनर सेक्टर, so we can find minor sector by pi r square theta by 360. Now the last topic, we required area of triangle OAB, हमें area of triangle OAB भी चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? So friends, there are only 3 possibility for the area of triangle OAB. Again I repeat, पूरे चैप्टर्स में ये 3 पॉसिबिलिटी ही आएगी। अब अगर ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आई थिंक चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर्स में फिर हमें वैल्यू ही पुट डाउन करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है, नथिंग टू डू एनीथिंग एल्स। इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। नाउ द लास्ट टॉपिक, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB? Again, as I said, there are only 3 possibility. First possibility is when theta is 60 degree. Theta is 60 degree means what? Angle subtended by minor arc at the center point is a 60 degree. Okay, now if theta is 60 degree, then triangle is a equilateral triangle, not isosceles, it's a equilateral triangle. It means length of all 3 sides are equal. Again I repeat, if theta is 60 degree, then triangle OAB is a equilateral triangle. So area of triangle OAB is equals to, अगर theta 60 है then it's a equilateral triangle, then its formula is √3/4 into L square. Here L means what? L equals to length of any sides, length of any side. Actually it becomes radius.
ये जो होगा वही होगा, लेंथ क्या होगी, जो रेडियस होगी उतनी ही। समझ में आ गया? ये फिक्स है। अगर थीटा 60 दिया है तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB के लिए यही फॉर्मूला यूज करनी है, दैट इज फाइनल, दैट इज √3/4 इंटू L²। नाउ सेकंड थिंग, दैट इज theta equals to 90. If the theta is 90, it means angle subtended by minor arc at the center point is 90 degree. Then area of triangle OAB equals to 1/2 into both the side, product of both the sides. Now in a right angle triangle, AB is not a sides, it's a hypotenuse. So sides are which? OA and OB. So product of both the sides, OA into OB. समझ में आ रहा है? If theta is 90, then area of triangle OAB is what? 1/2 into OA into OB. 1/2 into product of both the sides. And the last one and the most important topic, if theta is 120, okay, again if the theta is 120, it means angle subtended by minor arc at the center point is 120. चलो, then area of triangle OAB is equals to 1/2 into base into height. Which formula we will use? 1/2 into base into height, either altitude. Okay, so right now काफी बच्चे सोच रहे होंगे we don't have height, either altitude, but we have to draw altitude like this. So first we have to draw a perpendicular bisector of angle O. So it becomes 60 degree. Okay, right now base is what? Base is AB. Base is AB and height is what? OM. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? व्हेन द थीटा इज 120 डिग्री, इट्स फॉर्मूला इज 1/2 बेस इनटू हाइट, वेयर बेस इज AB एंड हाइट इज OM. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फाइंड करना है तो आपके पास ये दो वैल्यू होनी चाहिए. फर्स्ट इज कौन सी? AB एंड द सेकंड इज OM. ये दोनों वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो अब पहले वो हमें फाइंड करनी है. सो हाउ कैन वी फाइंड इट? सबसे पहले तो आपको सिर्फ यही ट्राइंगल देखना है. विच ट्राइंगल? OMA. इसी ट्राइंगल को देखना है फ्रेंड्स. नाउ again I repeat, OM is what? It's a perpendicular bisector of angle O. तो ये it's a bisector, it means M divides AB in two parts. So M is a midpoint of AB. तो इसके लिए क्या करना है? First you have to use sin 60. अब आपको यहाँ कुछ चीज याद रखनी है. फर्स्ट चीज, साइन की फॉर्मूला क्या है? sin theta equals to opposite side by hypotenuse. क्या याद रखनी है? sin theta equals to opposite side by hypotenuse. अब यहाँ इन दोनों का इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स. साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? साइन ये बता रहा है कि आपको साइन की फॉर्मूला लेनी है. What is the formula? Opposite side by hypotenuse. और ये 60 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको 60 से ऑब्जर्व करना है.
जहां 60 डिग्री है वहां से ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो देन अपोजिट साइड इज व्हाट, अपोजिट साइड कौन सी होगी इन अ ट्राइंगल OMA, इट्स अ AM, और हाइपोटेनियस क्या होगा, इट्स अ OA। ओके, फर्स्ट आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अब एक और चीज क्या याद रखनी है इसी में, साइन 60 उसकी वैल्यू है √3/2। ये सभी आपको आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अगर ये पढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ाया है तो आपको ये याद रखना है। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो हम यहाँ साइन 60 की जगह क्या रख देंगे, इट्स अ √3/2। नाउ AM दैट वी हैव टू फाइंड, एंड OA इज व्हाट, इट्स अ रेडियस जो दी गई होगी, रेडियस की वैल्यू दी गई होगी। अब अगर आप इसमें से AM को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपके पास AM की वैल्यू आ जाएगी। बट वी डोंट वांट AM, वी हैव टू फाइंड AB, हमें AB फाइंड करना है फ्रेंड्स। सो AB इज व्हाट, इट्स अ ट्वाइस ऑफ AM। तो जो हमें AM मिला है उसका हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इट्स अ ट्वाइस। ओके, इस तरीके से हमें AB मिल जाएगा बाय साइन 60। एंड द लास्ट थिंग आफ्टर दैट यू हैव टू यूज cos 60। क्या यूज करना है, cos 60। सेम अगेन, फर्स्ट cos की फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। अगेन आई रिपीट, cos थीटा की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो अगेन यहाँ cos का मतलब क्या है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, cos के फॉर्मूला लेनी है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, और 60 क्या इंडिकेट कर रहा है, 60 से आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम यहाँ 60 से ऑब्जर्व करें इन अ ट्राइंगल OMA, सिर्फ आपको ट्राइंगल OMA ही देखना है। तो अगर 60 से यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, इट्स अ OM, वो कौन सी होगी, इट्स अ OM, और हाइपोटेनियस क्या होगा, इट्स अ OA। और एक चीज याद रखनी है, वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 इज 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। अब OM हमें फाइंड करना है, OA इज व्हाट, रेडियस, रेडियस की वैल्यू दी गई होगी। अगेन इस तरीके से आपको OM मिल जाएगा। जैसे ही OM मिल जाएगा आप एरिया ऑफ ट्राइंगल OA भी फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो देर आर 3 पॉसिबिलिटी, अगेन आई रिपीट इट। फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन थीटा इज 60, सेकंड पॉसिबिलिटी व्हेन थीटा इज 90, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज व्हेन थीटा इज 120। अगेन इसकी फॉर्मूला हमने अलग से कैसे ड्रॉ की थी, ऐसे, इट्स अ OAPB, इट्स अ माइनर सेगमेंट। अगेन आई रिपीट, व्हेन थीटा इज अ 60 डिग्री, कॉन्सेंट्रेशन करके सुनिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, काफी बच्चों ने तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। Again I repeat, when theta is 60 degree, then triangle is a equilateral triangle, and the formula of area of triangle OAB will be √3/4 into L square, where L is length of sides. Second thing, when theta is 90 degree, then it's a right angle triangle, then formula of area of triangle OAB is 1/2 into, either 1/2 into product of both the sides, but right now sides are OA and OB, so it's a 1/2 into OA into OB. And the most important, when theta is 120 degree, तब हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट्स। एक्चुअली बेस और हाइट्स नहीं दिए होंगे, सो सबसे पहले हमें वो ड्रॉ करने हैं। इसके लिए क्या ड्रॉ किया, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, that is OM, and that is on the AB. So AB becomes base and OM becomes height. So formula क्या हो गई, 1/2 into AB into OM.
इसका मतलब क्या हुआ, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB वी नीड 2 वैल्यूज फॉर AB एंड OM। तो पहले AB के लिए क्या सोचना है, फिक्स ही है फ्रेंड्स, आपको कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। AB के लिए हम फर्स्ट क्या यूज करेंगे, साइन 60। साइन की फॉर्मूला अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस and we will observe from 60 degree. So as per figure you can see it, if we observe from 60 degree, opposite sides is AM and the hypotenuse is OA. So sin 60 equals to AM by OA. Now OA is what? It's a radius. उसकी वैल्यू दी होगी तो आपको वहां पुट डाउन करनी है and make a subject to AM. जैसे ही आप AM को सब्जेक्ट बनाओगे आपको AM की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उस AM का आपको क्या करना है, ट्वाइस। एंड फॉर दी OM वी हैव टू यूज cos 60। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 60? cos की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। सो 60 से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, इट्स अ OM, और हाइपोटेन्यूस कौन होगा, इट्स अ OA। सो cos 60 equals to OM by OA। अगेन OA is the radius and the value of radius is given, वहां पुट डाउन कर दीजिए, make a subject to OM, so you will get the value of OM। Now when you have the value of AB and OM you can easily find the area of triangle OAB। and the last thing, ये हमने किसकी फॉर्मूला देखी, इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हो जो माइनर सेगमेंट है, इट मींस ये, उसके अलावा जो भी पार्ट है दैट इज मेजर सेगमेंट। तो उसकी फॉर्मूला बनानी है अभी। सेकंड थिंग, उसकी फॉर्मूला सेकंड इज मेजर सेगमेंट which is also denoted by line segment AB union of AQB। उसकी फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू, कई बार मैंने यहां वो चीज आपको समझाई है, मेजर इक्वल्स टू सर्कल माइनस माइनर। अब किसकी फॉर्मूला बनानी है, मेजर सेगमेंट। तो दोनों साइड सेगमेंट वर्ड लगा दीजिए तो इट बिकम्स मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये फॉर्मूला क्या हो गई, इट्स अ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आपको मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो आपको दो चीज फाइंड करनी ही है। फर्स्ट वाली कौन सी, एरिया ऑफ सर्कल, और सेकंड वाली कौन सी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमने यहां देखा। उसकी फॉर्मूला ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब इसका मतलब आपने देखा फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि आपको फिगर में ऐसा दिया गया है, फाइंड दी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तब तो आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना ही है बाय द फॉर्मूला पाई स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है कि फाइंड मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर की फॉर्मूला क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसका मतलब यह हो कि उसके लिए भी आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना है। समझ में आ रहा है, माइनर सेक्टर दिया गया है तब तो आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना ही है, लेकिन अगर मेजर सेक्टर दिया है तब भी आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना है। एंड अगर आपको माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो उसकी भी फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसका मतलब क्या हो, फॉर दी माइनर सेगमेंट यू मस्ट हैव टू फाइंड माइनर सेक्टर, उसके लिए भी माइनर सेक्टर फाइंड करना है। और अगर आपको मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपको पहले माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, और माइनर सेगमेंट के लिए माइनर सेक्टर तो फाइंड करना ही है। कोई भी टॉपिक हो, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर,
माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कोई भी टॉपिक हो आपको माइनर सेक्टर फाइंड करना है और करना है। सो इस पूरे टॉपिक में आपने देखा सिर्फ एक्चुअली 2 ही फॉर्मूला है, पाई आर थीटा बाई 180 और पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और ये ट्राइंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, पूरे चैप्टर्स में कोई भी क्वेश्चन लीजिए उसमें इसके अलावा कोई सिचुएशन होगी ही नहीं, ये 3 सिचुएशन होगी, दैट इज फाइनल। तो आपको ये इतना याद रखना है। ओके फ्रेंड्स।